Okay, so welcome you all once again, lecture of data science, and now we'll cover study association rule. Okay, so what is the association rule and what is the use of this rule? We'll cover in study topic. So I just once again brief you. So association rule is basically used for data mining, and it is also used for machine learning, and it is also used in data science or data analysis. Association rule is basically used for predict the behavior of customers, or predict the behavior of anything. Okay, uh, so this is the basic definition of association rule. Association rule mining is a procedure which aim to observe the frequently occurring patterns, okay, and correlation or the association from the data sets found in various kinds of databases, such as the relational database, traditional database. The main thing is that the association rule we predict prior. ठीक है ना. So before happening any events, you can predict about that. That is the role of association. Okay. So these are the some examples. So association rule is basically uh, just like if-then statement. If a certain condition is happen, then what will be happen. Okay, so this is the example. Buy once a customer is buy a onion and potato, so it may be he will buy the tomato also. So this is the example, and we'll discuss detail started. So these are the some rules according this formula. We can compute the association or the prediction. Okay, support. What is support? Support क्या है? Support means the total events, total activity. ठीक है, जो भी टोटल एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, उसको हम सपोर्ट बोलेंगे. एंड कॉन्फिडेंस किसको बोलेंगे कि जो भी इवेंट्स परफॉर्म हुए हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं टोटल, उनमें से कितने इवेंट्स ऐसे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यही होगा. ठीक है ना. तो ये कंडीशन है. ठीक है ना, कि अगर सपोज दैट हमने देखा था कि अगर कोई कस्टमर जो है ना ब्रेड मिल्क और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ब्रेड और मिल्क परचेज करता है, तो डेफिनेटली वो बटर परचेज करेगा. ठीक है, दैट इज द कॉन्फिडेंस. ठीक है. अब इसके बाद फिर वो परसेंटेज है कि कितना परसेंट जो है हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं, है ना, कितनी सिमिलरिटीज हैं इसमें. तो ये चीज़ें थी, इसके बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था. ठीक है, डिटेल एग्जांपल्स हमने देखा था. अब इसके कुछ टाइप्स थे. ठीक है, उन टाइप्स में क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन रूल. So basically, association rule is divided into three types. One is the single dimensional, multi-dimensional, and hybrid dimension. So single dimension is when we consider only one dimension. It means one relationship among the uh, events. ठीक है, like bread and butter.
these are the two things, and relationship only buy. ठीक है, if a customer buy bread, he'll definitely buy the butter. So and the next is multi-dimensional, means more than one or two relation is established. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कि ऑक्यूपेशन है, कोई कस्टमर है जिसका ऑक्यूपेशन क्या है कि वो एक आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, आईटी प्रोफेशनल है, और उसकी एज जो है ना वो ग्रेटर देन 22 ईयर है। सो इट मे बी पॉसिबल कि वो लैपटॉप परचेस करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो देखिए रिलेशनशिप क्या है, एक तो उसका ऑक्यूपेशन है, दूसरा उसकी एज है, और तीसरा है बाई। ठीक है ना, तो ये तीन चीज़ें एसोसिएट हो रही हैं। ठीक है ना, तीन चीज़ों के बेसिस पे हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे कि वो क्या करने वाला है, लैपटॉप परचेस करने वाला है या नहीं करने वाला है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है। So one is the single dimensional, another one is multi-dimensional, and next is hybrid dimensional. Hybrid dimensional means the mixed. ठीक है, which repetitive predicts are dimensions. तो कुछ डिफरेंस है हाइब्रिड डायमेंशन में और मल्टी डायमेंशन में। हाइब्रिड डायमेंशन में और मल्टी डायमेंशन में क्या बेसिक डिफरेंस है? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हाइब्रिड डायमेंशन में जो भी इवेंट्स होगा वो रिपीट हो सकता है, बट या रिलेशनशिप जो है वो रिपीट हो सकता है, बट मल्टी डायमेंशन में ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए कि कोई पर्सन है, अगर वो 5 o'clock पे किसी शॉप पे जाता है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो टी की डिमांड करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, बाई या टी एट अ टाइम। टाइम क्या है उसका, यहाँ पे एक कंसेंट आ रहा है हमारे पास टाइम का, दूसरा है बाई, और तीसरा एक और है कि अगर वो चाय ले रहा है 5 बजे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो बिस्किट्स भी परचेस करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मतलब कि दो ऐसे रिलेशनशिप हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक है बाई का और ये एक क्लॉक का अलग है। ठीक है ना, अगर वो 5 बजे आता है तो वो चाय और टी की डिमांड करेगा, अगर वो लंच टाइम में आएगा तो कुछ दूसरी चीज़ की डिमांड करेगा, मॉर्निंग में आएगा तो किसी और चीज़ की डिमांड करेगा। तो ये चीज़ें हैं जो एसोसिएशन रूल को डिवाइड करती हैं। तो तीन तरीके से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, सिंगल, हाइब्रिड एंड मल्टी। इसके बाद कुछ पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एसोसिएशन रूल को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम इज अपियरी एल्गोरिथम, जो कि आपके सिलेबस में है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये भी दो एल्गोरिथम्स हैं जो कि आपके प्रेडिक्शन में काम आता है एसोसिएशन रूल में, एसोसिएशन रूल माइनिंग। नेक्स्ट, the application of association rule. So these are the some applications which are used where we can use the association rule. One is the wave uses mining, banking, bioinformation, and market based analysis, credit debit card analysis, and product clustering and category design, sorry, catalog designing. So these are the some fields where we can use the association rule. So ये एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम अपने एसोसिएशन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, वेब डिज़ाइनिंग में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि अगर आपके बिहेवियर को एनालिसिस करके और आपके पास उसी टाइप के एडवर्टीजमेंट भेज रहे हैं, आप जीमेल में लॉगिन करते हैं, आप यूट्यूब में लॉगिन करते हैं, इवन दो आप
किसी भी गूगल गूगल में अगर मान लीजिए कि कोई भी कोर्स को सर्च करते हैं, तो आप अगर अपनी मेल आईडी बनाते हैं तो आप अपनी मेल आईडी में आपने क्या रखा हुआ है, अपनी प्रोफाइल क्या डाली हुई है। जैसे आपने प्रोफाइल डाली है, आप स्टूडेंट हैं, आपकी एज जो है ना इस कैटेगरी में बिलोंग करती है ना, और आप प्रोफेशनल्स हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, मतलब आप किसी न किसी जो है ना कोर्स के साथ में इन्वॉल्व है। तो अगर आपने जीमेल में अकाउंट बनाया है, उसी के बेसिस पे अगर आप कोई सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, तो वो जो कंपनी वाले हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करके और उसी के बेसिस पे आपको एडवर्टीजमेंट सेंड करते हैं, आपको ऑफर सेंड करते हैं। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में भी आजकल यूज होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आज की डेट में किसी भी पर्सन की हिस्ट्री को देख के उसको प्रिडिक्ट करके बता देते हैं आज की डेट में कि इसको बीपी होने वाली है या नहीं होगी, आगे आने वाले टाइम में इसको बीपी होगी या नहीं होगी, शुगर होगा या नहीं होगा, कैंसर होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो मेडिकल साइंस जो है ना इस टाइप की थ्योरम में वर्क कर रहा है। ठीक है। मार्केट बेस्ड एनालिसिस आपको पता है, मार्केट बेस्ड एनालिसिस आप तो बहुत सारे चीज़ों में देख सकते हैं, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मार्केट बेस्ड एनालिसिस। क्रेडिट डेबिट कार्ड एनालिसिस, मतलब कि अगर हम कोई क्रेडिट कार्ड होल्ड कर रहे हैं, डेबिट कार्ड होल्ड कर रहे हैं, तो उसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितने अमाउंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ऑफर्स वगैरह वो लोग प्रमोट करते हैं, जो कॉलिंग टीम्स होती हैं इनकी या सर्वे की टीम होती है, तो बाई डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू मेल एंड थ्रू सोशल मीडिया साइट्स, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके थ्रू आपको प्रमोशंस वगैरह सेंड करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट क्लस्टरिंग, प्रोडक्ट क्लस्टरिंग में भी एज पर द कस्टमर डिमांड एंड कैटलॉग डिज़ाइन। ठीक है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे हम अपने एसोसिएशन रोल माइनिंग का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए अप्रियरी एल्गोरिथम। अप्रियरी एल्गोरिथम इज गिवन बाय आर अग्रवाल एंड आर श्रीकांत इन 1994। ओके, सो दिस इज द अप्रियरी एल्गोरिथम। ठीक है। अप्रियरी एल्गोरिथम को ये दो लोगों ने सजेस्ट किया था in 1994. It is used for finding frequent items in a data set for Boolean association rule. Boolean association rule. Either it will happen or it will not be happen. Okay. And algorithm is a priori because it use the prior knowledge of frequent item properties. ठीक है। मतलब हम पहले से ही प्रिडिक्ट करके और हम बता देंगे कि ये चीज इसका होने वाला है। ये चीज आज की डेट में देखिए साइकोलॉजिकल, ये जो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, इनका मतलब समझिएगा, रीजन समझिएगा कि आप अगर किसी मॉल में जाते हैं तो उनके मॉल में जो आइटम्स का स्टोर होता है कि मतलब किड सेक्शन के बगल में टॉयज रख देंगे या किसी और चीज़ के बगल में कोई दूसरी चीज़ रख देंगे, कुछ ऑफर वहाँ पे डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें उन तो वहाँ वो उस चीज़ का इंस्टॉल क्यों रखते हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है ना प्रियर एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके रखने का कोई रीज़न नहीं है, उनके रखने का वहाँ पे उस जगह पे उसका रीज़न। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतना परसेंट लोग आते हैं, तो इतने परसेंट लोग अगर ये खरीदने आ रहे हैं तो उसको ये परचेस करके जाते हैं।